Thank you very much. So I'll just tell you a little bit about myself. I'm Janvi Chitalia. I'm an integrative gut microbiome expert and a functional nutritionist. And we're one of the only few in India who's practicing this science at this point in time. And it's wonderful to be back on the wonderful dais and panel with Sixth Sense Association and Sixth Sense Research Association and Holistic Medicine. And I'm so glad and a big warm welcome and thank you, big warm welcome to all of you and a big thank you to Mr. B. Kumar and Mr. Ashok Sachdev for giving me this opportunity to really have an amazing, amazing talk with you. I just wanted to hear if I'm completely audible to all of y'all. Am I very clear and audible to y'all? Okay, great. So today I'm going to talk about one of the favorite topics that we have here today, which is really to do with stress and anxiety and gut health. And I think stress is something that we all know, right? There is nobody who needs to know really what stress means, right? Everybody know what stress is. And today I'm here to talk about certain things which will probably make you go back and think slightly differently about stress and maybe even want to make certain changes in your life which will help you feel a lot better and a lot more in control of the way that you feel when you're stressed. I'm going to give you a lot of wonderful explanations and I would love for you all to engage in a lot of Q&A with me. So I would like to keep this to, maybe a 35-minute, yes, thank you very much. I'd like to keep this as maybe a 35-minute topic and I'd love to actually interact more with you all and give you all the question and answers that you all need to know more of and be able to help you take back home something valuable today. So I'm going to quickly start with the first most important thing, which is what is stress? Okay, so stress is basically, it's very important to understand and I'm going to talk to you a little bit more in detail about that. So आज मैं stress के बारे में और anxiety के बारे में बात करने वाली हूँ. एंड जनरली हमको सबको पता है कि स्ट्रेस क्या है और मैंने जैसे बोला कि मैं एक गट माइक्रोबायोम एक्सपर्ट हूँ और फंक्शनल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ. हार्डली मैं जैसे कि मानो कि इंडिया में हार्डली 5 या 6 लोग ही है जो शायद से ये पूरा साइंस अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनमें से हम एक है. एंड आई एम वेरी वेरी प्रिविलेज्ड और मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप अपने सामने प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है, आपको कुछ नया बताने का मौका मिल रहा है. आई एम वेरी थैंकफुल टू Mr. B. Kumar and Mr. Ashok Sachdev for having me here today. और आपको एक सुनहरा हम इंटरैक्ट करने का मौका मिल रहा है. आज का सेशन में अराउंड 35 मिनट्स 40 मिनट्स बात करना चाहूंगी मैक्सिमम. और प्लीज अपने क्वेश्चन आंसर्स प्लीज आगे रखिएगा ताकि मैं उनके जवाब दे सकूं और मैं आपको वो चीज में मदद कर सकूं और समझने में मदद कर सकूं. तो बेसिकली मैं आपको स्ट्रेस के बारे में थोड़ा स्टार्टिंग से पहले बताती हूँ. व्हाट इज स्ट्रेस? सो स्ट्रेस इज बेसिकली अ कॉन्स्टलेशन ऑफ इवेंट्स, okay, consisting of stimulus that precipitates a reaction in the brain and that activates physiological flight or fight in the system or in the body. तो बेसिकली इसका मतलब वो था कि एक सीरीज ऑफ कोई भी एक के बाद एक इवेंट्स जो होते हैं जिससे स्टिमुलस जैसे कि एक एक रीजन बन जाता है जिससे एक रिएक्शन पैदा हो बॉडी में और वो रिएक्शन जो अपने बॉडी के एक फाइट एंड फ्लाइट जो बोलते हैं, अपना कॉर्टिसोल लेवल्स होता है जो स्ट्रेस हार्मोन्स होता है, वो फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन को वो उसको एग्रेवेट करता है या उसको एक्टिवेट करता है बॉडी में. उसके थ्रू आपको स्ट्रेस फील होता है बॉडी में, बी थ्रू अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स या साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जो भी बोलो. नाउ मेनली मैं आपको एक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर आई वुड लव टू टॉक टू यू ऑल अबाउट टुडे. वी ऑल हैव हर्ड ऑफ स्ट्रेस. सबको स्ट्रेस के बारे में पता है कि किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस है, किसी को मेंटल स्ट्रेस है, किसी को रिलेशनशिप स्ट्रेस है, किसी को ये करंट सिचुएशन की एंजाइटी है, किसी और को कोई अलग अलग टाइप के स्ट्रेसेस है. पर आज मैं एक बहुत ही अलग तरीके की बात करने वाली हूँ जो शायद से आपने सोचा ही ना हो और जिससे ये समझने के बाद शायद से आप थोड़ा और ज्यादा एफर्ट लेंगे अपने स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करने के लिए, अपने आप को इंटरनली ऑब्जर्व करने के लिए और अपने आप के इमोशंस को समझने के लिए. So number one, जो very very interesting fact that I like to talk about is that there are two kinds of stress.
One is stress and one is perception of stress. So stress basically वो होता है जब आपने बोला कि अगर जैसे कि आपने बोला कि वर्क अभी लॉकडाउन के हिसाब से लोग सोच रहे हैं कि मेरा फैक्ट्री कब चालू होगा या मैं ये सब वर्किंग कब चालू करूंगा, उसका स्ट्रेस हो सकता है. पर दूसरा वो है कि रेगुलर डे टू डे अपना जो स्ट्रेस है वो अपना एक नॉर्मल टाइप ऑफ स्ट्रेस है. या बच्चे घर पे हैं, उनको कैसे एंटरटेन रखे, या अगर घर के अगर कोई बीमार है या कोई एल्डरली है जो बीमार है जनरली, उनका कैसे ध्यान रखा जाए लॉकडाउन में, वो अलग अलग स्ट्रेसेस हो गए. या जब हम लोग गाड़ी चलाते थे, जब अब हम लोग अभी तो हम इतने टाइम से लॉकडाउन में तो हम भूल ही गए कि हम लोग रोड पे रोज ट्रैफिक का एहसास होता था. तो वो भी एक स्ट्रेस ही था. काफी लोगों को जिनको ट्रैवल करना पड़ता था पॉइंट ए से पॉइंट बी, एक जगह से पहुंचने में दूसरी जगह तक 2-2 3-3 घंटे लग जाते थे. So that is also another thing that would create stress. So there are two kinds of stress. One stress primarily is about the fact where there is an issue where आपने माना कि अगर आपको कोई भी इमरजेंसी आती है या आपके पीछे जैसे बोलते कि एक शेर आ गया या एक टाइगर आ गया, आपको पता है कि वो टाइम पे जो स्ट्रेस आपको फील हो सकता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है समझना वो स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया जाए. तो जब भी अगर टाइगर या एक लायन आपके पीछे आता है, आपको वो सोचने की भी जरूरत नहीं है, बॉडी इंस्टेंटली एक डिफेंस में चली जाएगी. आप इंस्टेंटली फटाफट भागने की ट्राई करोगे, रश करने की ट्राई करोगे, वो आपका एक जनरल रिस्पॉन्स रहेगा. बट नंबर 2 जो आपको समझना है इज व्हाट इज परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस. सो हमारी बॉडी को आइडियली दोनों स्ट्रेस के बीच का डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं पता. तो फॉर एग्जाम्पल a very important thing to understand is कि जब actually अपने को लायन पीछे अपने पड़ा है वर्सेस जब आप एक्चुअली घर के कोई भी काम में लेके स्ट्रेस्ड है या ट्रैफिक को लेके स्ट्रेस्ड है या अपने फाइनेंसेस को लेके स्ट्रेस्ड है, वो बॉडी को उन दोनों के बीच में डिफरेंस ही समझ में नहीं आता है. और दैट इज व्हाई द बॉडी रिएक्ट्स एज इफ के जैसे कि वो एक्चुअल लायन उनको फेस कर रहा है या लायन उसके पीछे भाग रहा है, वैसा टाइप ऑफ स्ट्रेस रिएक्शन बॉडी क्रिएट करती है. एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस. और वही है आज अगर आप समझ जाएंगे तो शायद से आप अपने स्ट्रेस को थोड़े और ऑब्जेक्टिवली देख पाएंगे, दूर से वो चीज को समझ पाएंगे और उसके थ्रू उस पर वर्क कर पाएंगे. नाउ दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो ये स्ट्रेस जो बेसिकली होता है, स्ट्रेस के अपने जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है हैप्पीनेस के लिए, डोपामीन है, सेरोटोनिन है, बहुत सारे अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स है, सबके बेस आपको उसके नर्व एंडिंग्स आपको अपने गट में मिलेंगे. एंड दैट इज लाइक आई सेड कि वी आर अ गट एक्सपर्ट. तो गट इज बेसिकली रिलेटेड टू योर लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. और वो लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का बैलेंस समझने के लिए आज मैं आपको काफी सारे अलग अलग टिप्स देने वाली हूँ. काफी सारे विटामिन क्या आप ले सकते हो, आप ये स्ट्रेस कैसे मैनेज कर सकते हो, आप ये एंजाइटी को कैसे मैनेज कर सकते हो, उसके क्विक इजी टेक्निक्स बताऊंगी. सो देयर इज अ लॉट ऑफ क्विक वैल्यूएबल फीडबैक दैट यू विल गेट टुडे, दैट यू कैन लर्न ऑफ हैंड, जिसके लिए आपको एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है. पर जरूर अगर आप 5 मिनट या 10 मिनट भी वो रोज प्रैक्टिस करेंगे, माइंडफुलनेस रखेंगे वो चीजों की, तो आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा. ओके, सो द हार्ड वर्क इज ऑलरेडी डन बाय मी. इट्स फॉर यू ऑल टू जस्ट पिक अप जो चीज आपको इसमें से फॉलो आप पसंद करे या आपको लगता है कि आप प्रैक्टिकली वो रेगुलरली कर पाएंगे, वो चीज को आप सिलेक्ट करके आप यूज करें. दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आज सेशन से आप क्या लेके जाते हैं वापस आपके साथ. ओके, सो लाइक आई सेड दैट परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस को ठीक करने के लिए the most important thing that you want to keep in mind is the fact that there is something called a 8-point count. Okay, so we use with our gut health, we use a 8-point count where whenever अगर आप कोई भी एकदम stressful situation में है, for that 8 points और 8 counts slowly regular जो अपना 1 to 8 आपको count करना है, you have to wait and be able to understand तभी कि your body understands कि there is a difference between नोइंग कि आपके मैंने जैसे बोला कि आपके पीछे कोई भी लायन या टाइगर नहीं भाग रहा है, ये आपका खुद का क्रिएटेड स्ट्रेस है. और बॉडी को बोले कि वो काम डाउन करके एक डिफेंस मैकेनिज्म निकाले या एक समझने की ट्राई करे सिचुएशन को, जिससे आप एक जनरल सोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम के लिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दोस 8 पॉइंट्स और 8 काउंट्स आर एबल टू सेंटर यू, या आपको एकदम बीच में एक सेंटर करने का, या आपको एकदम रिलैक्स करके
आपको बॉडी को, माइंड को, पूरा फिजियोलॉजिकल सिस्टम को रिलैक्स करने का वो एक प्रैक्टिस है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। एंड उसके लिए जब आप करोगे, आप रियलाइज करोगे कि वो मोमेंट में आप अपने खुद के लिए कितना सारा बेनिफिट ले सकते हो जस्ट बाय यूजिंग द 8 पॉइंट बेनिफिट। जब जहाँ पे आप अपने आप को एक थर्ड पर्सन के नजरिए से वो 8 काउंट के लिए भी देखे, तो अपना स्ट्रेस आप रिड्यूस कर सकते हो, अपना जो हाइपर रिएक्टिविटी है उसको रिड्यूस कर सकते हो, एंड यू वुड ओवरऑल फील मच बेटर एंड फील यूर इक्विप्ड टू हैंडल द स्ट्रेस दैट्स ऑन योर वे। So that's very important. Number 2, the most important thing जो मैं आपको आज इसके बारे में बताना चाहती थी, stress is nothing but it's like a nutrient deficiency. Stress is equal to, जैसे हम बोलते हैं ना, विटामिन B12, D3, हेमोग्लोबिन सब कम हो गया बॉडी में, बहुत वीकनेस आ गई, बहुत थकान आ गई, अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है मेरे को, मेरे लेवल्स जब तक ठीक नहीं होंगे आई डोंट थिंक आई फील बेटर। तो स्ट्रेस का इम्पैक्ट बॉडी में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के समान ही है। जैसे जब आप स्ट्रेस इतना लेते हैं तो आपके कितने सारे एक्चुअली जो आइडियल रिजर्व्स है सब डिप्लीट हो जाते हैं, सब कम हो जाते हैं बॉडी में। सो वो बहुत जरूरी है कि आप समझे कि एवरी टाइम आपने ज्यादा स्ट्रेस लिया, आपका बॉडी का मेन पावर हाउस जो है एनर्जी का, वो आप उसको रियली डिप्लीट कर देते हो। तो वो बहुत जरूरी है समझना दैट स्ट्रेस इज इक्वल टू विटामिन B12, D3, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी इन योर बॉडी इंस्टेंटली, slowly that will start happening to your system। तो वो समझना जरूरी है। ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है कि अपने 90% जो विजिट्स आपके होते हैं डॉक्टर के पास, अगर कुछ भी है जो आपको ठीक नहीं लग रहा है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो 90% ऑफ द विजिट्स दैट यू ऑल हैव आर रिलेटेड टू हैविंग स्ट्रेस इश्यूज। आपको मे बी उसके साथ हाइपरटेंशन भी है, डायबिटीज भी है, आपको हार्ट की बीमारी भी है, आपको पेट की या डाइजेशन की भी बीमारी है, पर उसके साथ 90% ऑफ द टाइम उसका बेसिक जो मेन जो कारण होता है वो स्ट्रेस होता है। तो वो समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि आपको एक मेन चीज जो समझनी है कि स्ट्रेस के अलग अलग सिम्टम्स क्या है ना। स्ट्रेस का एक ही सिम्टम नहीं है कि आपको लगे कि हाँ मेरे को पता है कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ। कोई बार ये स्ट्रेस सबकॉन्शियस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप हर टाइम अवेयरनेस में हो कि आप स्ट्रेस्ड आउट हो। कई लोग होते हैं जो ज्यादातर कोई भी छोटी छोटी बातों को एकदम इफेक्ट नहीं करने देते हैं, स्ट्रेस को अपने आप को इफेक्ट नहीं करने देते हैं, पर सबकॉन्शियसली उसको वो स्ट्रेस का इफेक्ट जरूर होता है। सो दैट इज इम्पोर्टेंट कि आप अलग अलग कौन से नजरिए से समझ सकते हैं कि स्ट्रेस एक्चुअली आपके बॉडी या सिस्टम को हो रहा है, और वो समझना बहुत जरूरी है। सो नंबर 1 इज देयर आर डिफरेंट वेज टू फिगर आउट इफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम और योर गट इज स्ट्रेस, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि आपके आपके इंटेस्टाइन में न्यूरोट्रांसमीटर्स है जो आपके ब्रेन और माइंड का बैलेंस मैनेज करते हैं, और वो चीज को समझना बहुत जरूरी है। और उसके थ्रू देयर मे बी डिफरेंट वेज दैट यू कम टू नो कि आपका स्ट्रेस लेवल्स हाई है। सो आई एम गोना बी क्विकली आफ्टर दिस कमिंग टू अ लॉट ऑफ टिप्स। आई एम गोना गिव यू अ लॉट ऑफ टिप्स टुडे टू टेक बैक होम। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने पेन्स, पेपर्स या अपने फोन पे आप नोट्स रखने के लिए तैयार रहे, ताकि इसमें से आपको जो भी एक आधा दो चीज भी अच्छी लगी आप फॉलो कर सकते हैं आगे चलते हुए। सो नंबर 1 वे टू फिगर आउट दैट स्ट्रेस है, और या आपको इवन दो आपको पता नहीं चल रहा है जनरली कि स्ट्रेस है, द गुड वे टू फिगर दैट आउट इज देयर विल बी चेंजेस इन योर बाउल मूवमेंट्स। वन नॉर्मल थिंग दैट वी हैव नोटिस्ड एज गट एक्सपर्ट्स, हम लोगों के स्टमक को बहुत और इंटेस्टाइन्स को बहुत क्लोजली देखते हैं, मोशन साइकिल को देखते हैं। जनरली आप स्ट्रेस हो जाओगे, इधर आपको ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की तरफ आपका बाउल मूवमेंट मुड़ जाएगा, या आपको ज्यादा लूज मोशन हो जाएंगे। नंबर 2 इज आपको एक जीआई सिक्रीशंस में फर्क पड़ेगा। तो जैसे कि आप जनरल जो खाते हो वो शायद से अगर 2-3 घंटे में डाइजेस्ट होता है, उसके बदले में आप देखेंगे कि वही चीज आपको लग रही है कि आपका खाना एकदम स्लो डाइजेस्ट हो रहा है, या बोलते हैं सिस्टम डाइजेशन में स्लो हो गई है, या कोई बार आपको लगेगा कि सिस्टम डाइजेशन में फास्ट हो गई है। लेकिन डाइजेशन में सुपर फास्ट फील लाइक आप खा रहे हो और सडनली एकदम जैसे कि अगर बॉडी को लगा ही नहीं है वो न्यूट्रिशन, वो बाहर आ गया। तो वो पूरा एक चीज समझना जरूरी है कि दीज फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट। तो नंबर 1 इज change in constipation, loose motion is one way, and is that you may see a difference in the way that your motions, the way your food is getting used in the body,
very very fast maybe the motions are happening, or very very slow the motions are happening, या आपको लग रहा है कि बॉडी एकदम फास्ट है, स्लो डाइजेस्ट कर रही है, these are the ways that you will come to know. Number 3 you will see is that बॉडी की रीजनरेट, अगर आप चलने जा रहे हो या आप कोई भी बेसिक एक्टिविटी करते हो, फिजिकल एक्टिविटी, आपको लगेगा कि आपका बॉडी हील बराबर फास्ट नहीं हो रहा है, तो रीजनरेशन कैपेसिटी इज स्लो, तो बॉडी को रीबिल्डिंग और रीजनरेशन के लिए टाइम लग रहा है. दैट इज ऑल्सो अनदर साइन कि आपका स्ट्रेस लेवल्स हाई है, इवन तो आपके माइंड में आपको लग नहीं रहा है कि आप स्ट्रेस्ड आउट हो. ओके, द थर्ड थिंग व्हिच इज, सो दैट इज द थर्ड थिंग. द फोर्थ थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट इज that you will see a microbiome imbalance. So we are experts in gut microbiome, and microbiome is nothing but a ecosystem where आपका good and bad bacteria साथ में रहता है, और वो balance उसका होना बहुत जरूरी है ताकि एक basic body में balance रहे, ताकि the good and bad bacteria equal in a way, are good for each other in the right balance. तो कई बार जब वो बैलेंस बिगड़ जाता है, सडनली बहुत ज्यादा गैस, ब्लोटिंग होनी चालू हो जाती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होने चालू हो जाते हैं, आप रात को डिस्टर्ब स्लीप आती है, या आपको स्लीप ही बराबर नहीं आती है. दे आर ऑल साइंस दैट यू आर प्रोबेबली स्ट्रेस्ड आउट. सो अगेन आई विल जस्ट रिपीट that there may be changes in the motion, there may be changes in the amount, the way that you digest food, fast or slow. There may be a difference in the way that there is आपको स्लीप का इशू है, या आपको माइक्रोबायोम या बैलेंस का इशू है इन टर्म्स ऑफ गैस एंड ब्लोटिंग. और दूसरा एक है कि आपको रीजनरेशन, बॉडी का हीलिंग फटाफट नहीं हो रहा है. ओवरऑल ब्लड फ्लो आपने देखना है कि ब्लड फ्लो बॉडी में एकदम ज्यादा बढ़ जाता है, तो उससे भी आपको पता चल सकता है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स इंपॉर्टेंट दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटेस्टिनल परमेबिलिटी. कोई बार आपको लगता है कि जैसे आप कुछ भी खाते हो, आपका स्टमक एकदम ज्यादा हाइपर रिएक्शन आपको होता है, थोड़ा एलर्जिक हाइपर रिएक्शन होता है, या आपको एकदम ज्यादा बॉडी एकदम हाइपर रिएक्ट करता है. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो चीज से आपको एक हाइपर रिएक्शन हो बॉडी में जब आप स्ट्रेस्ड आउट हो. So please understand that your gut and brain are very, very closely related. And I'm going to talk to you a little bit more about the gut and brain connection right now. So main thing, before we get into the tips, I'm going to give you some very, very cool tips and very, very easy और अच्छी टिप्स दूंगी जिससे आपका गट और ब्रेन कनेक्शन ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट कोपिंग ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, and overall with that your anxiety levels will also come down, your stress levels will also come down. So number one, एक very very interesting चीज जो मैं बताती हूँ, जो I'm sure हम लोग ने कोई भी टाइम पे अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है. For example, some of us when we become grandparents or parents, or some of us when we have had a promotion अपने जॉब में, या अपने बेटी या बेटे ने कुछ बहुत बहुत अच्छा, they have got a promotion or they've done very very well, or maybe you've heard that you need to go undergo a surgery for something. तो तभी जो आपने अलग अलग experiences, good or bad, से जो आपको स्टमक में वो रंबलिंग होता है, ऐसे लगता है कि बटरफ्लाइज जा रहे हैं स्टमक में, that is really basically a way that your brain connects to your gut या intestines. और ये एक्चुअली कम्युनिकेशन कॉन्स्टेंटली वो ऑन ही रहता है अपने सिस्टम में, आपको रियलाइज भी नहीं होता है ये स्टमक एंड ब्रेन. तो जब भी आप ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, जैसे मैंने बोला, पेट आपको लूज मोशंस हो जाए या कॉन्स्टिपेशन हो जाए, दैट्स बिकॉज देयर इज अ नर्व कॉल्ड द वेगस नर्व जो अपने गट और ब्रेन का कम्युनिकेशन चालू रखती है पूरा टाइम. एंड दिस वेगस नर्व इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो अपना स्ट्रेस मॉड्यूलेट करने में हेल्प करती है. द मोमेंट आपका ब्रेन ज्यादा स्ट्रेस आउट हो जाता है, आप इमीडिएटली उसका इफेक्ट सबसे पहले अपने स्टमक पे देखोगे. एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू ट्राई टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, या अपने ये वेगस नर्व को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है. So what really happens is that this communication basically happens every other day, every other time, constantly. पर जब constantly अपनी body को stress से ये एकदम hyper excited information जो pass on होती रहती है from the gut to the brain, वो होती रहती है, and gut to the brain and brain to the gut, वो आपको ज्यादा एकदम ज्यादा कोई बार excite कर देती है body को. So it's important that a basic balance, अगर आप ये वेगस नर्व का मैनेज कर सके तो उससे आपका स्ट्रेस लेवल्स, आपका गुड हैप्पी हार्मोन सब बेटर बैलेंस में काम करेंगे. So that is what I'm here to talk about today. I'm going to give you top 5 tips that you can use right now to improve the health and the strength and the resilience
जो बोलते हैं ना वो ताकत, वो रेजिलियंस एंड्योर करने की, सहन शक्ति जो बोलते हैं, तो वो ज्यादा जरूरी है मैनेज करना, कि आपका वेगस नर्व ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो आप कोई भी स्ट्रेस को मैनेज कर पाओगे, अपना गट और ब्रेन कनेक्शन भी मैनेज हो पाएगा. So the top 5 tips for that is, number 1 is laughter. Laughter is something that we all, who doesn't like being happy, who doesn't like cracking a joke. आजकल WhatsApp पे भी इतने सारे jokes आते हैं, अभी काफी सारे बहुत सारे हास्य कलाकार भी अभी बहुत सारे हैं जिसको आप देख सकते हो. लाफ्टर इज अ ग्रेट वे टू स्ट्रेंथन दैट गट ब्रेन कनेक्शन. तो रोज एटलीस्ट 10 से 15 मिनट अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करने के लिए और ये परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस कम करने के लिए, यू कैन स्टार्ट विद हैविंग like a 10-minute session where you're looking at something जो आपको, you're sitting with your family, your grandchildren, उनके साथ बैठ के कुछ करो, funny करो. You can have a laugh about things. You don't have to always be very serious. You can try and do something funny to make your children laugh, or make your grandchildren laugh. और और या आप कुछ देख सकते हो जिससे आपको excitement या हंसी which induces laughter. Second is meditation. Meditation is very very good to calm your nervous system down. और इसके बारे में मैं slowly थोड़ा और बताने वाली हूँ shortly. But nervous system के लिए very very important that आप meditate करें. वो meditation can be any kind of meditation, भले वो अपने आप prayer कर रहे हो, या आप chanting कर रहे हो, या आप कोई भी type का जो भी आपको पसंद है, जो आपको calmness और stillness देता है, जिसमें आपका faith और belief हो, वो 5 मिनट या 10 मिनट भी करेंगे, so it will start a very very good relaxation response. So meditation for 5 minutes also in the right mindset can give you benefits of 30 minutes of exercise, which is in terms of not calorie burning, but in terms of the mental peace. जो वो exercise या जो अच्छे kind of जो आप relate करते हो, जो अच्छे enzymes है वो बाहर आते हैं. So that is a very important thing that you want to keep in mind. Third thing is you want to take a hot water shower. So I mean hot water shower के बीच में a cold water shower. So most of us right now, I think गर्मी है तो काफी लोग नहीं पसंद करते हैं कि वो लोग गर्म पानी में नहाए. So that's okay. और जो लोग गर्म पानी में अभी भी पसंद करते हैं नहाना, 2 मिनट खाली नहाने तब उसके पहले 2 मिनट भी अगर आप ठंडे पानी में आप 2 मिनट भी बात लेंगे, 2 मिनट भी पानी गिरने देंगे, तो उससे भी आपका ये वेगस नर्व बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा. So that is also a very very good way that you can do that. Third is that you can third मैंने बोल दिया. Fourth is you can actually try and be able to do some basic exercise like walking, या जो आपसे योगा कोई भी चीज जो हो रही है उससे भी आपका ये वेगल टोन. So at least 30 minutes आप अगर 3 से 5 बार हफ्ते में अपने पेस पे कर सके, उससे भी आपका स्ट्रेस लेवल्स कम होगा, उससे भी आपका गट ब्रेन कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा, स्ट्रेस आप बेटर मैनेज कर पाओगे. सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट is a beautiful exercise of doing something called emotional journaling. So मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ कि there is ये जो gut brain axis है हमारा, they are connected. So ये जो gut brain communication है वो एक gut brain axis से वो काम करता है, और अपने माइंड को काम करने के लिए अपना डाइजेस्टिव सिस्टम या अपना गट स्ट्रांग करना या काम करना बहुत जरूरी है. सो उसके लिए मैं बताती हूँ कि अगर इमोशनल जर्नलिंग आप कर सकते हो, आई एम नॉट गोना गो इनटू द साइकोलॉजिकल पार्ट ऑफ इट बिकॉज देयर आर वेरी मेनी एक्सपर्ट्स ऑन दैट, बट फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ गट हेल्थ मैं बता रही हूँ कि जब भी आप अपने इमोशंस को भी सेंटर करते हो, आप लिख देते हो एक टाइम पे, आप उसको एड्रेस करते हो ना, अपने पीछे जस्ट उसको बैठने देते हो, पर एक बार इफ यू पुट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, यू मे फील मोर एम्पावर्ड, या आपको ज्यादा लगेगा कि आप थोड़ा ज्यादा expression will help you to feel better. So the top 5 tips to increase vagal tone, reduce stress, reduce anxiety, and strengthen the connection of this vagus nerve, which is very important for our gut brain communication के लिए, वो है अपना, you want to be able to definitely laughter, meditation, exercise, cold water shower, and emotional journaling. अभी I'm gonna come to the fact that आप normally कितने लोग इधर होंगे जिनको एक सेंसिटिव स्टमक रहेगा, जहाँ पे कभी ना कभी कुछ अलग खा लिया तो लूज मोशन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं. there is a very 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 important thing that more the chronic जितना स्ट्रेस रहेगा उतना ज्यादा आप देखोगे कि उसके साथ
आपके इफेक्ट्स वो चीज के या स्टमक के इफेक्ट्स बढ़ते ही जाएंगे ओवर टाइम. And that is why it's very important to calm down your system. And I'll tell you 3 tips that will help you to calm down your nervous system. So the most important thing is your digestive system, जो अपना पाचन शक्ति जो है या अपना जो अब्सॉर्ब करने का जो न्यूट्रिएंट्स अब अपनी इंटेस्टाइन्स जो नलियां काम करती हैं, उसके साथ ही आपको समझना जरूरी है कि अपना इम्यून सिस्टम भी उसके साथ ही साथ काम करता है. अपना इम्यून सिस्टम, हम आजकल इम्यूनिटी के बारे में कितना सुन रहे हैं लॉकडाउन में विद कोविड-19, हम कितना सारा ये सुन रहे हैं इसके बारे में. सो इम्यून सिस्टम ऐसी चीज है जो कोई भी चीज जो फॉरेन रहेगी, जो उसको समझ में नहीं आती है, उसका काम है कि वो एक डिटेक्टिव बने रहे. तो आप जो भी कोई चीज खाओगे जिससे शायद से आपको एलर्जी है या जो आपके बॉडी के लिए नया है, बॉडी इंस्टेंटली आपको एक रिएक्शन से बताएगी कि हाँ ये चीज मेरे लिए नहीं है या ये चीज मेरे को सूट नहीं हो रही है. दिस विल बी डिफरेंट वेज द बॉडी को रिस्पॉन्ड. सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप वो एक चीज समझने का ट्राई करें वेरी वेरी वेल कि एक बैलेंस अपना नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम जो है उसको काम डाउन करना अपने गट के लिए या अपने डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, सो दैट योर स्ट्रेस लेवल्स गो डाउन. अगर अपना इम्यून सिस्टम ऑल द टाइम हाइपर रिएक्टिव है तो अपना डाइजेशन भी नॉर्मल नहीं हो पाएगा. आपको जनरली हेडेक्स रहेंगे, आपको ब्लोटिंग रहेगा, आपको जैसे मैंने बोला स्टमक जल्दी क्लियर नहीं होगा या डाइजेशन स्लो या फास्ट हो जाएगा. वो बहुत जरूरी है समझना. सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि एक पूरा समझना और उसको जरूरी है. उसके हिसाब से इम्यून सिस्टम और अपने ये नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने के लिए एक्स्ट्रा एक्सेसिव काम डाउन नहीं करना. उसको बेसिक हाइपर एक्टिव है तो उसको नॉर्मल तक लाने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट. मैं आपको 3 टिप्स बताती हूँ. नंबर 1 इज यू कैन ट्राई एंड हैव एलोवेरा. एलोवेरा जो अपना है वो बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल है एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज एलोवेरा बिकॉज उससे आपको बहुत मजा आएगी इन टर्म्स ऑफ calming your system down. So use aloe vera. Aloe vera again will help to calm down the immune system, nervous system, और ओवरऑल उससे आपका गट की मे बी एसिडिटी है या आपको कोई भी गैस इश्यूज है उससे भी एलोवेरा से कम होंगे. योर डाइजेस्टिव फोर्स विल इम्प्रूव इन द बॉडी, जिससे आपका स्ट्रेस और गट बैलेंस बेटर होगा. सो यू कैन ट्राई एंड डू दैट. नंबर 2 आप जो यूज कर सकते हैं वो है पुदीना लीव्स. पुदीना लीव्स को आप बॉयल करके एक कप में आप रात को पानी में पी सकते हो, जिससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा. जिससे आपका इम्यून सिस्टम या वो अपना गट जैसे मैंने बोला कि अपना बॉडी सिस्टम काम डाउन हो जाएगा. तो उससे अगर आप मिंट लीव्स लेंगे तो इम्यून सिस्टम जो हाइपर रिएक्टिव है, जिससे आपको स्ट्रेस, एंजाइटी अगेन एंड अगेन फील होती है, उससे आपका नर्वस सिस्टम काम हो जाएगा और आपको इतनी एंजाइटी या स्ट्रेस उससे नहीं फील होगी. बट रिमेम्बर वन थिंग, मैं जो भी बता रही हूँ वो आप अगर एक दिन करेंगे और उसके बाद 5 दिन नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली उसका कोई रिजल्ट नहीं है ज्यादा होना. जो भी आप प्रिपेयर करें इसमें से करना, उसको सस्टेनेबली 1, 2, 3 महीने के लिए करे. अपने आप में अंदर जाग के देखे कि क्या डिफरेंस आ रहा है, उसको ऑब्जर्व करे क्लोजली, तभी आपको उसका चीज का बेनिफिट समझ में आएगा. सो सेकंड इज मिंट एंड थर्ड इज टू हैव कैमोमाइल टी. तो काफी सारे तरह के टी लवर्स है जो रेगुलर टी पसंद करते हैं, पर एक फ्लावर आता है जो टी है कैमोमाइल टी, वो लेने से आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा. यू विल फील अ लॉट बेटर. आपके नर्व्स काम डाउन हो जाएंगे. अगर कोई लोग बोलते नहीं वो ये कैमोमाइल टी मैं बाहर से नहीं ला सकती या मेरे को नहीं जमता है, तो दूसरा चीज आप कर सकते हैं, आप मैग्नीशियम के फूड्स बढ़ा सकते हैं अपने डाइट में. मैग्नीशियम आपको मिलता है डेयरी प्रोडक्ट से, सॉल्ट है या पनीर है, उससे आपको मिलेगा. और दूसरा है कि आपको डेफिनेटली उसके साथ ही साथ hi, I'll have to call you back. I'm on a live right now. I'll have to call you back at 6:35. तो आपको उसके साथ ही इट्स वेरी इम्पोर्टेंट दैट आप समझे कि आप एक जैसे मैंने बोला कि आप अपने इम्यून सिस्टम को काम डाउन करने के लिए एक कैमोमाइल टी नहीं तो मैग्नीशियम के अपने खाना ले सकते हो. तो नट्स में मैग्नीशियम है, आलमंड वॉलनट में मैग्नीशियम है, सीड्स में मैग्नीशियम है, सेसमी सीड्स में है. आप
आप चिया सीड्स में थोड़ा मैग्नीशियम है, फिर आप डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि कर्ड है उसमें मैग्नीशियम ले सकते हो उसके थ्रू, या आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम अपने नर्व्स को काम डाउन करती है, स्ट्रेस को रिड्यूस करती है, एंड ओवरऑल इट हेल्प्स यू टू बी एबल टू हैव अ बेटर सिस्टम इन प्लेस वेयर यू फील मच मच मोर काम। तो वो जरूरी है करना, और जिससे आपके स्ट्रेस लेवल्स भी कम हो जाएंगे। So the major connection between stress and your gut is the fact that there is this protein amino acid called glutamine. ये glutamine जो चीज है, जो एक essential amino acid है, वो बहुत जरूरी है अपने immune cell function lining के लिए। और कई बार जब glutamine अपने बॉडी में deficient हो जाता है, कई बार क्योंकि हम प्रोटीन इनफ नहीं खाते हैं, एज के साथ कम हो जाता है, उससे भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ने की शक्यता बहुत ज्यादा है जब वो बॉडी को अवेलेबल नहीं मिलता है वेरी रेडिली। सो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स। सो एनीथिंग फ्रॉम परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस टू ये स्ट्रेस वेरिएबिलिटी जो ग्लूटामिन से होती है, टू द फैक्ट दैट हम बॉडी को और इम्यून सिस्टम को काम डाउन नहीं कर पाते हैं, ये सब अलग अलग रीजंस है जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी बॉडी में बन सकती है। एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू ट्राई टू बी एबल टू बैलेंस इट through doing the right things, by strengthening your vagus nerve, by calming your immune system down. These are two ways you can do that, and there are a couple of foods जिसके बारे में अभी मैं बात करूंगी जिससे आप अपने immune system को strong कर सकते हैं, stress और anxiety को reduce कर सकते हैं। So please एक simple connection आप please समझिए ये चीज का, कि आपका gut जो मैंने बोला intestines में अपने सब neurotransmitters है जिससे अपने emotions, moods सब regulate होते हैं द गट। तो दैट इज व्हाई लाइक आई सेड, जब अगर गट में कोई भी अपने अब्सॉर्ब कोई भी चीज हुई है जो अपने बॉडी को नहीं सूट हो रही है, इंस्टेंटली इट विल कॉज एन इश्यू इन द बॉडी। इंस्टेंटली आपको शायद से एलर्जिक रिस्पॉन्स होगा, इंस्टेंटली इम्यून सिस्टम ज्यादा ओवर रिएक्ट करेगी, एंड यू विल सी कि आपका स्ट्रेस लेवल्स, फिजियोलॉजिकल, इमोशनल, मेंटल स्ट्रेस लेवल्स भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि आपके स्टमक के अपसेट होने से अपना माइंड अपसेट होने का बहुत ज्यादा कनेक्शन है, एंड दैट्स व्हाई दोनों को एक सस्टेन और मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। So that's why I'm showing you tips for that. So I'm just going to do a recap again quickly. The main recap is कि आप जो मैंने वेगस नर्व का जो बताया, उससे आप अपना ये कम्युनिकेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हो, वो नर्व के कम्युनिकेशन गट और ब्रेन के एक्सेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। नंबर 2 जो मैंने बताया आपको, ये जो फूड्स हैं जो अभी जो मैंने जो तरकीब बताई, वो सब चीजें हैं जिससे अपने इम्यून सिस्टम को काम डाउन कर सकते हो जब आप स्ट्रेस में हो। तो मैंने ये दो चीज शेयर कर ली। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ इज अ 5 to 6 थिंग्स, स्मॉल थिंग्स जो आप अपने गट को, अगर आप मैंने जैसे बोला कि काम डाउन रखे उससे, और ये जो फूड जो आप खाएंगे या सप्लीमेंट्स जो लेंगे उससे, अगर आप बोलो कि नहीं जानी जो भी है, मैं अभी तो बहुत ज्यादा एंग्शियस हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, हाउ डू आई हेल्प माई सेल्फ राइट नाउ, ये आपने बता लिया, चलो मैं स्ट्रेंथन कर सकता हूँ अपने सिस्टम को, मैं अपने सिस्टम को काम डाउन करने की भी एक प्रैक्टिस ले सकता हूँ। पर व्हाट इफ आई एम ऑलरेडी वेरी एंग्शियस एंड वेरी स्ट्रेस्ड, व्हाट कैन आई डू नाउ? Okay, so there are 2 to 3 things that I'd love to share with you. So the most important, there's something called आप ये जो stress relieving mechanisms अपने body में है जिससे body eventually anxiety और stress को calm down करेगी। So stress and anxiety synonymously work with some people. जो लोग stress हो जाते हैं, it leads to with a gut reaction with your neurotransmitters, उनको as a emotion और as a feeling वो ज्यादा anxious हो जाते हैं। So that is what they are interrelated with each other, and these will work overall with your gut health, with your stress, in the middle of anxiety. If you do these, generally आपकी anxiety और stress levels भी कम हो जाएंगे। So there is there is something called so you have, I'm sure you'll have heard of probiotics. The probiotics are the beneficial bacteria जो अपने gut में है ऑलरेडी, जो जैसे मैंने बोला कि माइक्रोबायोम का जो बैलेंस है गुड एंड बैड बैक्टीरिया का, द गुड बैक्टीरिया वेरी इंपॉर्टेंट गाइस फॉर अस बिकॉज दे आर लाइन ऑफ डिफेंस, एंड दैट इज व्हाई दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो कई बार हम जब ज्यादा, अगर हमारी किसी की भी सर्जरी हुई हो, या किसी को कोई इन्फेक्शन हुआ हो, या अगर आप मे बी कहाँ पे इफ यू फॉलन डाउन एंड यू हर्ट योरसेल्फ और आप पेन किलर्स और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी पे हो,
आप एंटीबायोटिक्स पे हो, आपका खाने का पूरा ये बदल गया हो, तो आपका कई बार स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो, स्लीप डिस्टर्ब्ड हो, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स से आपका बेनिफिशियल बैक्टीरिया का बैलेंस कम हो जाता है अपने गट में. सो यू कैन स्टार्ट विथ हैविंग अ probiotic which is called a Flori Store. FLORISTORE. फ्लोरी स्टोर करके आपको एक प्रोबायोटिक मिलती है जो आप केमिस्ट से ले सकते हो. वो फर्स्ट थिंग एट नाइट और फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग और लास्ट थिंग एट नाइट ले सकते हो, खाने से 1 घंटे दूर. उससे आपको बहुत मदद हो जाएगी, जिससे बेनिफिशियल बैक्टीरिया इंक्रीज होंगे, आपका बॉडी स्ट्रेस को बेटर कोप अप कर पाएगा. सेकेंड थिंग इज टू बी एबल टू हैव समथिंग लाइक प्रोबायोटिक्स. अगर आपको सप्लीमेंट नहीं लेने हैं तो आप एक योगर्ट ले सकते हैं, जैसे कि कर्ड में प्रोबायोटिक्स है. फिर आपका फर्मेंटेड वेजिटेबल्स है, आपके घर पे जो हम बनाते हैं रेगुलर पिकल्स, उसमें भी आपको मिलेगा कि उसमें फर्मेंटेड वेजिटेबल्स या फर्मेंटेड पिकल्स में भी आपको गुड बैक्टीरिया मिलेगा. पर ऑब्वियसली इट शुड बी लो ऑन सॉल्ट और ऑयल. पिकल में कम रहना चाहिए, तो वो आप ले सकते हैं रोज. दूसरा, अगर आप वो दैट इज प्रोबायोटिक्स. सेकंड इज बी वाइटामिन्स. बी वाइटामिन्स अपने मूड के लिए बहुत जरूरी है. काफी सारी स्टडीज है जो बताते हैं कि अगर खाली बी वाइटामिन्स बढ़ाने से लोगों का स्ट्रेस 30% कम हो सकता है. सो बी वाइटामिन्स में सभी बी वाइटामिन्स आते हैं, फ्रॉम B1 से लेके अपना B12 तक जो हम जानते हैं. उसके बाद भी बहुत सारे वाइटामिन्स है, पर एटलीस्ट B1 to B12 आप ले सकते हो. सो बेसिक बी कॉम्प्लेक्स जो आता है लाइक अ बीकसूल, उसमें आपको मिलेगा. a way that you all can try. So these are all the tips I'm giving you. When you are really stressed, you can try and use these things that will help your system overall, help reduce anxiety. तो बी विटामिन आप ले सकते हो, और उसके साथ ही आप ले सकते हो B12. So B12 is a very important factor which comes to अपने मूड, नर्व, सबके लिए बहुत important है. So कई बार हम देखते हैं कि वेरी सिवियर B12 डेफिशिएंसी में लोग रिकवर नहीं कर पाते हैं. लोग बहुत ज्यादा थकान, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स भी महसूस करते हैं, बिकॉज B12 इज एक्चुअली अब्सॉर्ब्ड इन योर गट. और अगर गट अपनी वीक है तो उससे भी अब्सॉर्प्शन B12 और D3 दोनों का लो हो जाता है. सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट आप B12 बराबर लीजिए. मेगा न्यूरॉन OD प्लस करके आप ले सकते हैं, नहीं तो आप ले सकते हैं डेयरी के फॉर्म में है या नॉन वेजिटेरियन फॉर्म्स है, जिसके थ्रू आपको B12 और D3 दोनों मिलेगा. Third being D3. D3 is not just a vitamin, but it's actually a very important hormone for your mood, or hormone for managing or immunomodulating stress. तो उसके लिए D3 का इनफ होना बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर D3 इनफ नहीं है बॉडी में, तो आपको उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है इन टर्म्स ऑफ मूड स्विंग्स, एनर्जी लेवल्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंजाइटी, सब में फर्क पड़ सकता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव D3 in good enough quantity. D3 again हम लोग समझते हैं कि 30 के लेवल तक है तो ठीक है, पर 30 is actually low. You should have a D3 between 30 to at least 60 or 70. उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, but 60 तक के लेवल तक तो होना ही चाहिए, ताकि the body feels better. क्योंकि ये 30 से लेवल्स कभी भी नीचे जा सकते हैं, और जब वो नीचे चले जाएंगे तो बहुत कम हो जाएगा, और जल्दी कम हो जाता है D3. तो हम लोग इतना सनलाइट भी नहीं लेते हैं. So it's important that you take D3. Last thing that I would like to say is omega-3 आप ले सकते हैं. Omega-3 is very very helpful overall for improving your mood, improving your stress levels, improving blood circulation. It's very very important. तो आप D3, B vitamins और प्रोबायोटिक के साथ omega-3 fish oil capsule ले सकते हैं, या flaxseed ले सकते हैं. They are very important. These will all help you to immunomodulate your stress in the moment of a very very major event where you're actually feeling. So please understand, overall एक ही चीज से ये चीज नहीं बनती. You need to आप थोड़ा meditate करो, थोड़ा exercise करो, थोड़ा mindfulness practice करो, थोड़ा eat healthy. All of these together will make an impact. It's not just कि आपने ये 5 खा लिया और फिर कुछ भी नहीं किया तो भी stress कम हो जाएगा. It's an integrated effort, but they definitely will help. So omega-3 fish oil capsule आप ले सकते हो. 1000 mg at least once a day लेना जरूरी है. अगर आप फिश ऑयल कैप्सूल नहीं खा सकते हो तो आप फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल ले सकते हो. नहीं तो आप फ्लैक्सीड ले सकते हो, विच इज आप उसको भून के सीधा ओपेक कंटेनर में डाल दो.
आपको उसको रोस्ट नहीं करना है, उसको ग्राइंड करके सीधा एक ओपेक कंटेनर में फ्रिज में रख दीजिए, जिससे आपको बेटर लगेगा। तो वो करना जरूरी है, उससे आपको यू विल फील मच मच बेटर। अब जो जनरल फ्लैक्सीड ऐसे ही ले लेते हो, दैट्स नॉट वेरी गुड, जो मुखवास की तरह, बिकॉज उसमें प्रॉपर्टीज नहीं रहती है। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट। दूसरा जो मैं एक और जो बात करना चाहूंगी इज अबाउट द फैक्ट के आपको उसके साथ ग्रीन टी इज वेरी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस। उसमें एक L-theanine करके कंपाउंड रहता है जो दैट हेल्प्स टू रिड्यूस द स्ट्रेस। सो L-theanine इज वेरी गुड। देयर इज EGCG करके भी उसमें एक कंपाउंड एपिकोगुलैक्टिन जो है, उस कैटोकिन विच इज वेरी वेरी गुड। उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा, तो आप डेफिनेटली वो भी यूज कर सकते हो। ग्रीन टी में भी 2 to 3 times a day is helpful to have that. And the last thing that I'd like to talk about is flavonoids. Flavonoids जो है, जो अपने कलरफुल plant based foods में मिलता है, which is very very helpful. You can try and have that. That's very helpful for your body. अलग अलग कलर्स के जितने फूड्स खाएंगे, उससे आपका स्ट्रेस डेफिनेटली कम होगा, गट माइक्रोबायोम डाइवर्स होगा, उससे आपका गट माइक्रोबायोम इंप्रूव होगा, उससे आपका मूड और एंजाइटी will be more in control, and overall you will feel better. Last but not the least, I would like to talk about one main thing, which is about the fact कि मैंने अभी so I've covered everything from in simple points to see from anything from what does stress look like subconsciously, what are the facts about stress. We covered about understanding more about what are the symptoms that subconsciously you get to know कि stress है या नहीं. फिर हमने कवर किया हाउ टू इम्प्रूव द गट ब्रेन एक्स फॉर द कम्युनिकेशन फॉर better resilience during stress. We also covered how to calm down the immune system, which is such an important part of how your body reacts to stress. And last but not the least, in the midst of a main stressful situation, what are the small things that you can do to improve your stress levels through working on your gut health? And last but not the least, one last thing that I'd love to share before I get on to your questions is about mindfulness. Mindfulness is very very important. I think the main thing is कि it's very important that आप एक दो चीजें आप अपने आप को जरूर, जब आप looking at your body every day, you want to question. One is to look at mindfully looking at if your body feels in balance or not. It's very very important to look at it. Like I said, there are different ways. Your body is always trying to have a conversation with you, and like I said, it's very important to understand कि आप खाली हम difference वो है कि हम उसको सुनते नहीं है, या हम सुनते हैं तो उसको अनसुना कर देते हैं. So really looking within and checking with yourself and the balance is very important from time to time. And you can meditate to practice mindfulness, which is very very helpful. वो आप जरूर कर सकते हैं. And last but not the least, I would suggest that it's very very important that you understand that there is an you can practice something called intention. So intention is also very important for your gut health, along with the 8-pointer that I told you about. Is really when you are stressing out yourself, or when you're talking about perception of stress, जो मैंने starting में बात किया, 2 things is, one is to do a 8-point counter, and दूसरा is to really ask yourself that what is truly the intention behind being stressed, and whether it's truly that stress is going to be is it going to be a stress which is helpful for your body, because see, some amount of stress is required for all of us so that we work, we have a balance. A basic stress is actually healthy for all of us. Stress is not bad. Stress is not the bad guy. It's your body's response to stress which is important. It's your body's gut's response to the neurotransmitters which are affected by your stress जो important है. So overall मैं एक ही चीज बताऊंगी, stress बुरा नहीं है. आपको खाली जब आप स्ट्रेस में हो, अब तब 8-point काउंटर करके एक इंटेंशन को समझे कि क्यों अपनी बॉडी स्ट्रेस है, उसको परसीव करे, उसको समझने की ट्राई करे, and really use self-care and love towards your body and yourself, because don't be hard on it all the time. And you want to really be able to respect where you live in, because this is the only wonderful place that you have to live in, which is your body and the balance of your mind. So if you really want to lead a happy, stress-free life, I don't think anybody of us should really chase for a stress-free life. We should chase for a life where we truly believe that we are the best versions of handling our stress and our response to stress in the most effective way for ourselves. And that is really the win today. And that is what I wanted to take back home as a message, that really don't be scared of having once in a while an anxiety or having stress, as long as
you are seeing that you can use that effectively to turn it around for something positive for yourself, and managing to keep back the balance of your body after that, because that's your body's way of communicating with you. So really, I thank you so much for being a lovely audience. And I would like to really say that, just the main thing is love your body, love the balance, and really be able to find one thing that works for you today from whatever we shared. I will find that it will be very nice if you can find even one thing I shared with you जो आपको अच्छी लगी, आप वो कर सकते हो. So I'm going to move into the questions right away. तो मैं क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ. तो किसी ने मेरे को इधर रविंदर कौर ने मेरे को पूछा है that I have constipation and hyperacidity and I have to take a capsule, otherwise I can't. So not feeling that day. Okay, so if you have constipation, for example, या hyperacidity, it's very important कि आपका अपना फाइबर इनटेक बढ़ाए. फाइबर इनटेक बढ़ाने बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज फाइबर के बिना अपना मोशंस क्लियर नहीं आ सकता है. सो नंबर 1 है आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स का इनटेक बढ़ा सकते हैं. एंड नंबर 2 वो चीज है कि आप उसके साथ ही साथ आप सोल्यूबल फाइबर का भी इनटेक बढ़ा सकते हैं, जैसे कि ओट्स है, एप्पल है. एप्पल अगर बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो एप्पल आप अवॉइड करें, नहीं तो बार्ली है. ये चीजों से भी आपको वो सोल्यूबल फाइबर मिलेगा. तो दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है. और गर्म पानी आप ले सकते हो आफ्टर एवरी मील, जिससे आपका मोशन सॉफ्ट होगा एंड मोटिलिटी विल इंक्रीज. ऑल्सो रविंदर जी, यू कैन ट्राई फॉर हाफ अ टीस्पून ऑफ जीरा, half a teaspoon of saunf, 1 pinch of hing, and 1 pinch of ajwain in warm water at night and in the morning, so that you get better motions. And I'm happy कि अगर आपको कोई भी question है, you can personally get in touch with me and talk to me about that, and I'm happy to share my information with you all. So that is one thing that you all can do. Somebody else has asked me about any relation of vitamin D supplement and constipation. So vitamin D supplement and constipation ideally should not be a problem, because normally iron is what leads to constipation, but not really so much with vitamin D. But कई बार क्या होता है, because vitamin D3 is an oily supplement, sometimes उसको वो digest करने के लिए, उसको break down करने के लिए बॉडी को कोई systems को ज्यादा time लगता है, which could lead to a little bit of a gas or a constipation. So the days that you're taking vitamin D3 supplement, you can try and have a little more of warm water, so that you are able to break down and the stool doesn't get very hard with it. And अगर आप vitamin D3 ले रहे हो, उसके साथ अगर आप एक vitamin E supplement भी लोगे, like a fat soluble vitamin Evion 200 IU लोगे, तो overall वो fat soluble vitamins को break down करने में वो help करेगा. तो आप वो भी कर सकते हो. Different, I think Chandramohan ji ने आपने पूछा, Chandramohan ji ने पूछा how do you different flax seeds. So see, I think mainly the main flax seeds जो आपको बाहर मार्केट में मिलता है, जो आपको डब्बे में मिलता है, or which is available with like मुखवास में, that's something you don't want to have. There are only 1-2 types of. There is a organic flax seed जो आपको मिलता है. You can try and go for the organic one. And mainly जो brownish, जो ready flax seed जो मिलते हैं, that is what you want to try and get, जो roasted नहीं है और जो ज्यादा एकदम मतलब they are very crispy. So those flax seeds are the ones that you want to grind. सीधा grind करके उसको एक opaque container को लेके fridge में store कर दो, because they have a very high affinity to heat and air, and उससे उनकी properties destroy हो जाती है. So that is the main thing. So you can try and have organic alsi. Normally the packets look the same. You need to try and buy from a trusted vendor, so that you know कि वो लोग रोस्ट करके आपको नहीं दे रहे हैं. जब आप खाओगे थोड़े भी flaxseed, you will clearly see the difference between the flaxseed which is grinded and which is not, which is roasted and non-roasted. तो वो भी आप try करके देख सकते हो. There is a crispier taste in the ones which are roasted. So वो आपको पता चल जाएगा. Probiotics, I'll repeat again, Latika. So probiotics के लिए आप एक Flori Store करके है, FLORISTORE. फ्लोरी स्टोर आप ले सकते हो एज अ प्रोबायोटिक, जो आप केमिस्ट से ले सकते हो. दूसरा, अगर वो आप नहीं ले रहे हो तो आपको फूड के थ्रू चाहिए, तो यू कैन डेफिनेटली हैव योगर्ट, लाइक अपना कर्ड. यू कैन हैव आवर पिकल्स मेड एट होम व्हिच इज ऑफ लेस सॉल्ट एंड ऑयल. एंड यू कैन आल्सो मे बी मेक समथिंग लाइक घर पे अगर सावरक्राउट है या किमची है
ये सब भी काफी सारे ट्रेडिशनल कैबेज और जिंजर को फर्मेंट करके बनाए हुए प्रोबायोटिक्स आप ले सकते हो. Nilima is asking about how magnesium helps to calm down the nerves. So magnesium basically has the properties of calming down the contractions very easily. जो अपने bone के भी contractions होते हैं of the muscle and the joint contractions, उसमें magnesium helps to calm down the contractions. So magnesium's property is to calm down the nerves. So you can have different sources like nuts है, seeds है, dark green leafy vegetables है, dairy है, जिससे आपको वो सोर्सेज से आपको फर्क पड़ेगा एंड जिससे आपका इम्यून सिस्टम जो हाइपर है, इट विल हेल्प यू काम द इम्यून सिस्टम डाउन एंड इट विल हेल्प यू रिलैक्स योर इम्यून सिस्टम व्हेन यू आर वेरी स्ट्रेस्ड या जब ज्यादा एलर्जी है, इट विल हेल्प यू ओवरऑल विद दैट और उसके साथ आपको फर्क पड़ जाएगा. What is gastric? Krishna Patel is asking what to do for gastric reflux disease. So gastric reflux के लिए I would really suggest, Krishna, that you would first of all want to bring out spicy, fried and alcohol. अगर these irritants are there, you want to completely stop these irritants. आपको उसके साथ ही it's very important कि कई बार ये गैस्ट्रिक रिफ्लक्स जो होता है बिकॉज आपका जो एक स्पिंक्टर होता है, एक एलियस स्पिंक्टर होता है जो आपका फूड को नीचे रखता है खाने के बाद, वो थोड़ा लूज हो जाता है. सो यू वांट टू ट्राई कि एटलीस्ट 3 hours आफ्टर यू ईट, टिल 3 hours यू डोंट वांट टू एक्चुअली स्लीप. यू वांट टू ट्राई एंड बी इन द स्ट्रेट पोजीशन. अगर आप सो रहे हो तो थोड़ा एलिवेट करके सोइए जिससे आपको थोड़ा फर्क पड़ेगा. और दूसरा चीज दैट यू वांट टू ट्राई एंड डू इज, अगर आपको ये है तो देयर बी डिफरेंट फूड्स like anything which creates acidity for you is very important कि आप reduce करें. तो वो चीज सबके लिए अलग हो सकती है, तो I'll need to understand more in detail from you one on one. पर अगर आप कई बार आपको वो चीजें जो आपको लगता है जिससे रिफ्लक्स बढ़ता है आपको अवॉइड करना. नॉर्मली वो फ्राइड या शुगर या which are spicy से होती है, so you want to try and avoid that. And last but not the least, आपको वो भी माइंड में लगता है कई बार एसिडिटी इज मेनली बिकॉज स्टमक एसिड लो है और हाई नहीं है. तो कई बार स्लोली जब अगर गैस्ट्रिक रिफ्लक्स कम हो जाता है उसके बाद आप 1 स्पून एप्पल साइडर विनेगर भी लेंगे तो उससे आपका गैस्ट्रिक रिफ्लक्स कम हो सकता है बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एसिड इन द बॉडी विच इज गुड फॉर यू. Next question, किसी ने Prachi is asked about your father has hyperacidity and gas issues. So this again, Prachi, this is related to probably like I mentioned about it could be a GERD like I just mentioned about right now, or it can even be to do with the fact that there is sometimes क्या होता है कि there are good and bad bacteria in your gut, in your large intestine, and that goes up all the way to your upper intestine, which is your small intestine. और जब ये बैक्टीरिया which are supposed to be in the large intestine go up to the small intestine, they cause something called एक बैक्टीरिया ओवरग्रोथ हो जाता है उससे. तो वो बैक्टीरिया ओवरग्रोथ से हाइपर एसिडिटी गैस के इश्यूज होते हैं. तो उनके लिए भी 2 ही चीज मैं बोलूंगी जो कैन से इंस्टेंटली. एक तो आप उनको डेफिनेटली एसिडिटी हाइपर एसिडिटी हो रही है तो आप उनको 1 चम्मच सब्जा सोक करके दे सकते हो टू रिड्यूस द हाइपर एसिडिटी एंड गिव मिंट लीव्स आल्सो पानी में, जिससे हाइपर एसिडिटी या हीट बॉडी में कम हो. और रात को सोने के पहले जीरा और सौंफ का पानी आप उनको गर्म करके दे सकते हैं जिससे उनका बर्पिंग कम हो सकता है. बट द मेन थिंग इज दैट वी वर्क ऑन द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. सो प्राची, आई एम हैप्पी टू टेक दिस विथ यू वन ऑन वन. आप मेरे को उसके बारे में बता सकते हैं क्योंकि वो नॉर्मली क्या हो रहा है कि वो जब सो रहे हैं तभी सब ऊपर आ रहा है या बर्पिंग हो रहा है बिकॉज वो हॉरिजॉन्टल हो गए हैं तो वो एलियस लूज है तो सब ऊपर आ रहा है और जिससे उनको चेस्ट पेन हो रहा है. तो चेस्ट पेन प्राइमरी वो गैस की वजह से ही हो रहा है. तो अगर वो 1 घंटे सोने के पहले अगर वो जीरा या सौंफ का पानी पियेंगे तो मेरे हिसाब से वो बर्पिंग और वो गैस की फीलिंग कम हो जाएगी. और हाइपर एसिडिटी के लिए आप उनको सब्जा दो. बट मीनवाइल एक्चुअली अगर बैक्टीरिया ओवरग्रोथ है वो मेरे को समझना पड़ेगा डिटेल. नेक्स्ट किसी ने पूछा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेट गेन, स्ट्रेस एंड एंजाइटी. तो सी बेसिकली लाइक आई मेंशन्ड कि जो मैं परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस की बात कर रही थी डॉक्टर रवीश, it is about the fact that when you're talking about perception of stress, where your cortisol levels normally have to rise up when you are in an emergency situation, or like I said, when you're running away from a tiger or a lion. But when your cortisol seems to go up every now and then with the smallest stress, be it with, like I said,
be it, small stresses from a day-to-day experience ke, okay, you have to take care of cooking for so many people, or the current scenario of the, COVID-19, yeah, current work situation, all of these things can relate to increasing your cortisol levels. When your cortisol levels go up, your sugar can also go up and your insulin levels also spike. So when your insulin and your cortisol levels spike, they lead to weight gain. And that weight gain, obviously, in turn, because your stress levels are high, your good neurotransmitters of dopamine, serotonin they also become low. Your gut also gets imbalanced when your cortisol levels are high and the weight gain is there. So overall stress and anxiety then get elevated, especially when there is weight gain and inflammation in the body. So जब अपना gut का microbiome balance खराब हो जाता है, उससे भी आपका stress and anxiety बढ़ सकता है. So overall, that's why having the prebiotics and probiotics, having the vitamin D, all of these things overall help. B12, all of these help overall with a normal issue. Constipation के लिए already mentioned, you can do a जीरा अजवाइन water and warm water, और आप fiber insoluble and soluble fiber बढ़ाएं, और पानी at least 3 to 4 liters पीजिए. अगर तो भी आपका एक chronic constipation problem है, Usha, then I'm happy to get on a call with you and understand more about everything. Last, I think Usha has also asked about, yeah, you wake up suddenly during midnight. So, so see, you may be waking up. So Usha mentioned you wake up because of tension. So 2-3 things. Number one, I'll suggest Usha, एक तो आप probiotics चालू करें and supplement with vitamin B12, D3 and magnesium के supplementation. आप खाने से भी ले या supplements भी ले. Probiotic I'll definitely suggest कि आप supplement ले, number one. Number two, I would suggest कि आप एक wind down routine बनाएं, जहाँ पे at least 30 minutes before you sleep आप सोने के पहले डेफिनेटली सब मोबाइल डिवाइसेस, आईपैड्स जो भी है सब स्विच ऑफ करें और थोड़ा डार्कनेस क्रिएट करें रूम में, ताकि आपको एक रेस्ट मिले एंड द बॉडी रियलाइजेस दैट यू आर गेटिंग रेडी फॉर स्लीप. दूसरा, जो सफोकेशन या हीट या टेंशन का प्रॉब्लम है, आई वुड सजेस्ट कि जैसे मैंने बोला कि आप सोने के पहले एक इमोशनल जर्नल मेंटेन करें, जो मैंने आपको वेगस नर्व के बारे में बताया, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. और दूसरी चीज मैं मानती हूँ कि आप दूसरा एक चीज कर सकते हैं कि आप डेफिनेटली ट्राई करें कि आपको अगर विद द चेंजेस, इफ देयर इज अ हॉट फ्लैशेस या कुछ हो रहा है, तो यू कैन ट्राई टू गेट दिस टैबलेट कॉल्ड मेनोपेस, MENOPACE. मेनोपेस, जिससे अगर आपको सफोकेशन या हीट हो रही है या टेंशन से आप उठ रहे हो, तो वो आपको काम डाउन करने में हेल्प करेगी, स्पेशली इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ पेरीमेनोपॉज टू मेनोपॉज, और इफ यू आर ऑलरेडी इन मेनोपॉज. So Prachi, I would suggest that if you have the issue day on day with your dad ka, burping or gas or hyperacidity, I would really, really urge you to give me a call. So it looks like it may be a bacterial overgrowth, which affects people from every day to day. So I'll need to understand more in detail to give you a lot more information. Right. Last 2 questions I can take right now is there any way immunity can be measured? Immunity, Mr. VB has asked this question. So immunity can be measured in the way that you are able to cope up with your stress levels better. So if obviously your immunity is a great booster or a way to know that your body is okay. Generally, if you know your immunity is good, it's the time that you don't recurrently have stomach upsets. If you don't have allergic reactions very, very easily to food or intolerances, if you don't have headaches from time to time, if you don't easily get a cough, cold, or a sinus attack or a breathing issue, these are all different ways to figure out if your immunity is good. Even if your mental state balance is better, will always be better, then that time your immunity can be measured better. Janvi, yeah. I want to know, what do you suggest for people who are above 60? What precautions? See, they are normally leading a sedentary lifestyle. चलना फिरना काम होता है, योगा काम होता है, खाने का डाइजेशन का सिस्टम का प्रॉब्लम्स रहता है. तो इन जनरल आप क्या सजेस्ट करते हैं कि भाई हम लोग अपने आप को मिनिमम में फिट रखें? Sure. So Ashok ji, my answer to that will be very simple, that what I will suggest is, एक तो number one, घर पे ही जितना अगर 15-15 मिनट 2 बार आप चल सकते हो, प्लीज चले, because उससे आपका डेफिनेटली ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा
overall it will help you totally in terms of जो अपना जरूरी है कि बॉडी एक जगह पे स्टैग्नेंट और स्टिफ ना हो जाए, तो वो एक जरूरी है करना. नंबर 2, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप ट्राई करें उसके साथ ही साथ के आप खाना थोड़ा लाइट ही खाएं. तो शाम का खाना जो है जितना जल्दी हो सकता है 7 या 8 बजे के पहले तक खा लें, सनसेट के साथ खा ले तो वो बेटर है. क्वांटिटी तभी आप जो है, तो भले आप बैलेंस फूड खाए तो आप थोड़ा जैसे कि अगर रोटी है या आप जो भी सब्जी है या अपना प्रोटीन है, जैसे कि थोड़ा मे बी आपने नॉन वेज है या जो भी पनीर है या जो भी आप खाते हो प्रोटीन में, एक बैलेंस मील खाएं पर क्वांटिटी कम रखे. एंड आप ज्यादातर चालू करें फाइबर के साथ. तो जैसे कि एक एक्स्ट्रा बोल सब्जी हो गया या एक बोल रूम टेम्परेचर सूप हो गया, ताकि आपका फाइबर इनटेक बराबर रहे. तो फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गट. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट अपने गट के लिए आप फाइबर इनफ बराबर रखे ताकि आप सबको वो हेल्प हो सकता है. तो ओवरऑल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जैसे मैंने बोला प्रोबायोटिक है, आपको जरूर लेना चाहिए. विटामिन D3 जो डोज आता है, विटामिन D3 का डोज है जो आप ले सकते हो 2000 IU पर डे, वो आप ले सकते हो जो मिनिमम डोजेस में है. और आप जिंक करके जिंकोविट भी ले सकते हो फॉर +60 के लिए, ताकि क्योंकि जिंक विथ एज आपके बॉडी में कम हो जाता है तो इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू. थोड़ा डेफिनेटली कीप योर माइंड हैप्पी, डू सम एक्टिविटी एवरी डे व्हिच यू लाइक so that you feel better and more lifted, and that will help overall. Okay, thank you. Last 1 or 2 questions I'll just answer because I will need to sign out. Yeah. So one is I think Nilima, if you're talking about cuts on the border of the tongue, I need to understand more in detail. So again, I've given my number. I'll need to know when do they come in, how do they come in, how long do they stay. They could be signs of deficiency, but I need to understand more. So please feel free to call me and I'll explain you that. Varsha, you've asked about hair fall and male pattern baldness with hormonal imbalance. Definitely, it's a sign that there is. Hi. Just give me one moment. Give me 1 moment. I'm signing in and calling you. There may be a male pattern imbalance. So, Varsha, you may want to try to be able to cut out dairy, sugar, and wheat as much as possible. I'm again happy to talk to you in detail about how you can manage the testosterone levels from being low, and that's clearly why this is happening. So, and you can take some supplementation for your hair fall, increase water and protein for your hair fall. So we can talk about that in detail. Aradhana is asking about soluble fiber. Soluble fiber is important in terms of like you can take oats, barley, all of them are very easier to digest. So their soluble fiber is the more easy to digest fiber, while the vegetables and all are insoluble fiber, which are harder to digest. So you want to try and keep a balance of both. Soluble fiber, generally the best options are oats, barley, apple, and you even get the isabgol, which is soluble fiber. So that is something that you want to try and have. And dono ka balance is very important for your stomach to do well. Last, I think Ravinder was asking about the tablet name. So Ravinder, the tablet name which I mentioned was Menopace, MENOPACE. Okay, and prebiotic suggestions, Deepa. I'd suggest so prebiotics, you're getting a lot of supplements today with pre and probiotics. I'd suggest basically at home, the best prebiotics that you can use is onion and garlic, which is available readily in your kitchen. They are the best prebiotics. For the people who don't know, prebiotics are the food for your beneficial bacteria, which is your probiotics. So you can definitely have that also. All right. Thank you so much for having me here today. And I hope you all could take back something valuable today from the session. And you all are going to be able to use that very much into your daily lives. I'll be very, very happy to answer any of your questions. You all can get in touch with me on my number, which I've mentioned on the chat. You all can also follow me on Instagram, which is Janvi Chitalia Official, to have the latest updates on gut health and much more. And last but not the least, you can definitely get in touch with me and learn more about gut health on www.janvichitalia.com, which is my website. Thank you so much once again for being a wonderful, inquisitive audience.
And thank you, B. Kumar and Ashok Sadhvi ji, for having me here today. It was truly a pleasure to talk to you all about this topic, which is so close to my heart. Thank you very much. Thank you, Janvi. It is one of the most enlightening lectures we have heard, and your guidance is going to go a long way in helping all our audience. We are highly indebted to you. You have done a great job, and we welcome you in future to speak more about other subjects in which you specialize. Thank you so much. Thank you very much. So much. Thank you very much for sharing your knowledge. Thank you. It's my pleasure. And thank you so much once again. It was really lovely interacting with such a lovely audience. And thank you for giving me this amazing platform, which does already so much for beneficial health. Yeah. Thank you. Thank you. Okay, friends. हेलो, अभी कल के लिए हम लोग पोस्ट कर देंगे चैट के ऊपर, और जानवी का डिटेल्स भी हम लोग चैट के ऊपर डाल देंगे. जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इफ दे वांट एनी गाइडेंस, शी विल प्रोवाइड टू यू. आई थिंक जो भी बताया गया है काफी था, बहुत लोगों ने फायदा उठाया. मैं चाहता हूं कि आगे भी दूसरे लोग जो पार्टिसिपेट करें वो भी इसी तरीके से और शेयर करते रहें, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए और अपने आप को अच्छी तरह से हेल्थ के पाथ में रखें. थैंक यू वेरी मच. द मीटिंग इज कंक्लूडेड टुडे. थैंक यू.